Hello students, I hope you will be fine. Today we shall discuss about types of a fraction, that is second part of a fraction. विद्यार्थियों, आज हम भिन्न के सेकंड पार्ट में भिन्नों के प्रकार, उचित अनुचित मिश्र और इकाई भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप की भिन्न है या फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आपके पास है यूनिट फ्रैक्शंस। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट फ्रैक्शंस, यूनिट fractions with numerator 1। okay? ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न जिसका न्यूमरेटर 1 हो आर कॉल्ड एज ए यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए इन दिस फिगर 1 2 out of this 1, this is colored 1, so therefore this fraction is 1/2. Generally we will say it is a half. Now this is 1/3, this is 1/4, this is out of 5 1 part, therefore 1/5, out of 4 part 1, therefore 1/4, out of part 3 1, therefore this is 1/3. Now it is clear, 1/3 1/4. Now if I write 1/10, then this is written as 1/10. Clear? The th word is very important. 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज यूनिट फ्रैक्शंस। एक रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, यूनिट फ्रैक्शंस कहलाती है। नाउ वी कम टू second type of a fraction and very important type of a fraction, second type, this is proper fraction. Clear? Proper fraction, proper fraction को उचित भिन्न कहते हैं हिंदी में। उचित भिन्न, उचित भिन्न। क्लियर? देखिए, fractions in which numerator is less than the denominator, numerator is less than डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है? अंश। ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा होता है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। और देखिए इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स into which the whole is divided and the numerator shows the number of part which have been considered। इसमें देखिए फिगर देखिए सेम। in a proper fraction the numerator is always less than the denominator। clear? Numerator is always less than denominator. If we consider first example, total part, if we count 1 2 3 and 4, out of 4 3 parts we have taken colored part, therefore our fraction is 3/4। this is numerator, this is denominator। जैसे मैंने कल कहा था लाइन से ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। बिलो द लाइन पार्ट कहलाता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 4 है। इन द सेम केस numerator 2, denominator 3। देखिए numerator 2 is less than 3। clear? in this case numerator 3 is less than 4। clear? in this case 8 is less than 10। therefore these are the proper fractions। we can write any example, you can write any type of, just consider 1001 upon numerator will be less than, so if you put 10 more 1000, obviously this is 4-digit number and this is 5-digit number, so in this case numerator is always less than the denominator। तो therefore these are example of a proper fraction। समझ में आ गया होगा। मैं जहाँ तक मेरी सोचना है कि proper fraction उचित भिन्न ऐसी भिन्न या ऐसी fractions जिसमें numerator denominator से क्या होता है? छोटा होता है। numerator is less than denominator। now we move to type of fractions, third type of fractions, that is it is also very important type, third type of fractions, improper fraction। improper, improper को हिंदी में कहते हैं अनुचित। क्लियर? अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। ऐसी भिन्न देखो
दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ ए प्रॉपर। देखो नाम से क्लियर है, प्रॉपर, प्रॉपर का अपोजिट इम्प्रॉपर। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, a fraction in which numerator is more than or equal to the denominator. This is very important, equal to। देखिए ऑब्वियस है, इम्प्रॉपर है, अनुचित है, उचित का उल्टा होगा, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर का रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। तो प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर था, तो इसकी जो कंडीशन होगी ये ध्यान रखिए, न्यूमरेटर, देखिए न्यूमरेटर क्लियर इज डिनोमिनेटर। कंडीशन क्या होना चाहिए था, इक्वल्स ग्रेटर देन होना चाहिए था सिर्फ, लेकिन ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि न्यूमरेटर के साथ में डिनोमिनेटर का इक्वल्स टू का साइन भी होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने यही लिया है, 1 2 3 4 पार्ट है, आउट ऑफ 4 वी हैव टेकन ऑल पार्ट्स, दैट इज 4/4। तो दिस इज, देखिए 4 is equals to 4। दिस इज which फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न। देखिए इसमें देखिए 4/3 क्लियर, और सिमिलरली 5/4, देखिए 5/4 क्लियर। तो these are the examples of improper fractions। I am repeating, what is improper fraction? If numerator is greater than equals to denominator, then this type of a fraction is called as a improper fraction। If we write any example of improper fraction, then numerator, if I write in similar way to previous example, 2001 0001, now 2001 in numerator 30 in denominator 20, तो ऑब्वियस है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, ग्रेटर देन। और इफ आई राइट 102/102, in this case numerator upon denominator, clear। this is very important example, okay, in numerator and denominator both are equal, then it is also called as a improper fraction। now we move to another type, fourth type of fractions। this is mixed fraction। नाम से ही क्लियर है, मिक्स, जिसमें दोनों मिली हुई वो। तो मिक्स फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर अलोंग विद द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन को अपन क्या कहेंगे, ऐसा लिखा जाए तो अपन क्या कहेंगे, होल नंबर दोज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू इनफाइनाइट, प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए PF प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। देखिए ये भी अपन ने पढ़ा है, तो इसको अपन, ये अपनी क्या डेफिनेशन होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो एक एज ए फॉर्मूला अपन कह सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, होल नंबर प्लस क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या में अपन प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, दोनों को जोड़ दें तो ये क्या कहलाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्लियर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसको हिंदी में कहेंगे मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तब देखिए ये 1 कंप्लीट है, क्लियर, 1 कंप्लीट 4/4, इसमें देखिए 3 पार्ट कंप्लीट, और दिस 4/4, 3 को क्या कर सकते हैं अपन, 4/4 ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो इसको अपन जैसे अपन चेंज करें तो अब क्या लिख सकते हैं अपन, ये 1 इज इक्वल्स टू 4/4 हो गया, 3 पार्ट कंप्लीट है, 4/4 3 1 1 1 3। तो देखिए क्या होगा, इसकी फ्रैक्शन लिखें, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1 1 1 1 मीन्स ये कौन सा होगा, देखो 3 टाइम्स 4/4, इसको ध्यान से देखिए, 3 टाइम्स 4/4, ये भी 4/4, ये भी 4/4, ये भी 4/4, और ये पार्ट कितना होगा, देखो देखें 3/4। देखिए इस एग्जाम्पल को लीजिए, क्लियर। तब देखिए 4 3/4, तब यहाँ देखिए ये 4 नहीं होगा, ये 4/4 तो 1 हो गया। अब इसके पास में क्या होगा, ये प्लस क्या हो गया 1/समथिंग, ये 3 पार्ट लिए हैं तो 4/1/3 हो जाएगा, 1 प्लस 4/4 नहीं होगा ये, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या होगा अपने पास 1 पार्ट प्लस 1/3। अब यहाँ क्या होगा, देखिए ये 1 ये 1
ये 1, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 1 प्लस 3/4, या 1 नहीं लिखना चाहें तो 4/4 भी लिख सकते हैं। देखो 4/4 क्या हो गया 1 हो गया ये पार्ट। तो 1 1 1, तो ये कितनी बार हो गया 3 बार, तो ये क्या होगा 3 इंटू 4/4 प्लस 3/4। क्लियर, तो इसको साथ लिखेंगे अपन इक्वल्स टू 3 3/4, 3 इंटू 3/4। क्लियर, तो ये कहलाती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ अब किसी भी फ्रैक्शन को अपन नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे ये देखिए 0 से स्टार्ट होती है नंबर लाइन, ये 1, लेफ्ट में ये इधर कौन से होते हैं, ये जो नंबर होगा ये 0 है, इसके इधर कौन सा नंबर होगा नेगेटिव, और इधर जब आगे बढ़ेंगे अपन तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तभी आपके पास 0 है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में देखिए, ये पार्ट दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट, तो ये क्या हो गया 1/2। क्लियर, इसको कैसे करते हैं एक्सप्रेशन में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर करता हूँ इसको। तो ये आपके पास क्या हो गया O, ये क्या हो गया A, ये आपके पास क्या हो गया कोई भी पॉइंट क्या हो गया B। सिमिलरली 1/3 पार्ट में तो दिस ऑल द 3 पार्ट्स आर इक्वल। अगर इसको देखिए 1 2 3 और 4, ये देखिए सारे पार्ट्स इक्वल है 1 2 3। ये नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से नंबर लाइन पर। अब से ये एक अच्छा एग्जांपल है, मैं अगर डिस्कस करता हूँ कि 8th पार्ट में डिवाइड करना है तो कैसे करते हैं। नाउ देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट, होल और पार्ट जो उसका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स में लिखना है। तो देखिए 17/4, पार्ट ए को देखिए 17/4, तो 17 को अपन ने 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर है। क्लियर, तो अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये रिमाइंडर और जिससे अपन ने डिवाइड किया ये अपना डिवीजर क्या होता है कोशिएंट। तो देखिए क्या होगा 4, ठीक है 4 आपके पास क्या हो गया कोशिएंट, और रिमाइंडर 1 अपॉन क्या हो गया डिवीजर। तो इसको याद रखें फॉर्मूला कि इसका जो फॉर्मूला होगा कोशिएंट, और यहाँ ऊपर क्या जाएगा रिमाइंडर, और नीचे क्या जाएगा डिवाइजर। यह फॉर्मूला याद रखें, या किसको ऐसा लिख दें QR/T। देखिए इसको आप लिख दें देखिए इसको आप लिख दें Q कोशिएंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, चाहे तो बीच में प्लस का सिंबल लगा दें, ये आपके पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, ये 4 1/4। इसका सेकंड मेथड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड नहीं करें तो 11/3, 11 को क्या लिख दिया 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल क्या था 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 ज़्यादा हो जाता है इससे तो 9 लिखा, 9 + 2, फिर इनको सेपरेट कर लिया तो ये 3 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ईजिएस्ट मेथड भी। अब देखिए इसका सी पार्ट, देखिए सी पार्ट आपके पास क्या है 27/5, 27 को 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे 27 डिवाइडेड बाई 5, देखिए 5 5 जा 25 अपॉन रिमाइंडर क्या हो गया 2, ये देखिए 5 5। तो क्लियर, तो देखिए फॉर्मूला देखिए कोशिएंट अपने पास कितना है 5, रिमाइंडर कितना है 2, और ये डिवीजर जिससे अपने डिवाइड किया है इसको डिवाइड कितना हो गया 5, 5 5 जा 25 तो 27/5, ये सी पार्ट। इसी तरह से ये डी पार्ट देखिए डी पार्ट, ठीक है, ये आपको करना है। अब देखिए अब ये क्या जो फॉर्मूला वही बताया जो मैंने आपको कोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, ये याद रखें मिक्स फ्रैक्शन में के लिए कोशिएंट रिमाइंडर और डिवीजर। ये देखिए आप मिक्स फ्रैक्शन का टेक्निकली, और ये देखिए इसका रेसिप्रोकल क्वेश्चन है वापस अपने मैथमेटिक्स में, देखिए फॉलोइंग द फिक्स फ्रैक्शन एज ए इम्प्रॉपर में एक्सप्रेस करना। तो अब देखिए सिंपल सा है 2 3/4, तो देखो क्या लिख सकते हैं 2 + 3/4, तो एलसीएम लेंगे तो 2 4 जा 8, देखो 8 + 3 11/4, ठीक है। और जनरल शॉर्ट में करना चाहें 7 1/9, देखिए 7 1/9, तो 7 × 9 + 1
अपॉन 9। तो देखिए 63 प्लस 1 64 अपॉन 9। सिमिलरली 7 5 जा 35 और 3 38 अपॉन 7। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी फॉर्मूला है होल इंटू डिनोमीटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमीटर। याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, बाकी डायरेक्टली अपन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए, मैं सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के करूंगा 7.2 के। देखिए, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु के रूप में लिखिए। अपन ए पार्ट को करते हैं। देखिए ए पार्ट क्लियर। अब देखिए इसमें 1/2, 1/4, 3/4, 4 लार्जेस्ट डिनोमीटर कितना है 4। देखिए डिनोमीटर 4 है और डिनोमीटर में लार्जेस्ट नंबर 4 है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल्स। ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप। ओ ये देखिए मैं डार्क कर रहा हूँ पॉइंट को, थोड़ा बड़ा आपको छोटा करना। अब 4 इक्वल पार्ट्स है, तो 4 इक्वल पार्ट्स चाहें तो आप स्केल से 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पार्ट लगा सकते हैं। क्लियर। 1 2 देखिए दिस वाज 1 2 3 4 5। इससे ज़्यादा पार्ट लगा लें। ये आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ये आप देखिए, ये आपके पास क्या हो गया 0। हम देखिए ये 0। अब यहाँ से आपके ज्योमेट्री बॉक्स में देखो प्रैक्टिस होगा, उससे आप इस तरह से कट कर देंगे इक्वल पार्ट से। 1 2 देखिए 1 2 3 4। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा ऐसा कोई पार्ट्स आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है इजीली, जिसको आप इस तरह से आप इनको कट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल आर्क लेकर के, ये पॉइंट है 0, यहाँ से आप इक्वल आर्क लेकर के इसको कट कर सकते हैं। अब देखिए मैं वापस बनाता हूँ। देखिए ये लाइन ड्रॉ किया अपन ने, दिस इज ए पार्ट। अब देखिए क्लियर है, यहाँ 0। अब मैं पॉइंट लगा रहा हूँ। देखिए पॉइंट लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ये पॉइंट 0, ये पॉइंट लिया मैंने ए 1 2 3 4 5। मोर देन 4 पॉइंट आपको लेने हैं। इधर कौन से नंबर होंगे नेगेटिव और इधर कौन से नंबर होंगे पॉजिटिव। अभी तो आपको नहीं लिखना, लेकिन जानकारी के लिए बता रहा हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव 0। तो अब देखिए आपको क्या करना है, काउंटिंग नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 एटसेट्रा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप डिनोमीटर देखिए, अपना जो डिनोमीटर कितना है फर्स्ट पार्ट में 4। देखिए 4। तब अपन को क्या करना, सबको 4 से डिवाइड कर दें। देखिए 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 एटसेट्रा। देखिए तो अब देखिए 0/4 अगर आप चाहें तो इसको वापस देखिए 0/4 किसके इक्वल होगा 0 के 1/4। अब देखिए 2/4 ये किसके इक्वल होगा 1/2 से। देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। और ये 4/4 जा देखो किसके इक्वल होगा 1 के। देखो ये 1 के इक्वल होगा, ये हाफ के इक्वल होगा। तब आपको कौन कौन सा पॉइंट चाहिए 1/2 चाहिए। देखिए तो इसको आप ओ मार्क कर लें, आप लिख लें नंबर वाइज, आपको जो भी पॉइंट आप देना चाहें ए बी सी डी ई जो भी अपने को चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए हाफ। देखिए हाफ, तब हाफ को अपने इसमें कौन सा शो कर रहा है, देखो हाफ। हाफ क्या है 2/4। हाफ कौन सा पॉइंट हो गया नंबर लाइन पर बी। देखिए फिर मुझे क्या चाहिए, देखिए 1/4। तो देखिए 1/4 कौन सा पॉइंट हो गया मेरे पास ए। फिर देखिए मुझे क्या चाहिए 3/4। 3/4 कौन सा पॉइंट हो गया सी। फिर देखिए 4/4, ये देखिए 4/4 कौन सा पॉइंट हो गया मेरे पास डी। देखिए ये आपका क्वेश्चन क्लियर है। ये जो काम है आपको क्या करना है पेंसिल की हेल्प से करना है। क्लियर है, ये वर्क आपको पेंसिल की हेल्प से करना है। ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर, मैं और नेक्स्ट पार्ट और कंसिडर करता हूँ। देखिए सेकेंड पार्ट, देखिए इसका बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में क्या, देखिए 8 पार्ट डिनोमीटर में, न्यूमरेटर में क्या है 7। क्लियर, तब 8 पार्ट है तो मैं नंबर लाइन लेता हूँ। देखिए थोड़ी बड़ी नंबर लाइन बना दीजिए। ये नंबर लाइन मैंने बना दी। ये देखिए नंबर लाइन यहाँ पर लीजिए ये पार्ट। ठीक है, इंक चेंज कर लेते हैं। देखिए
ये देखिए, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है। इक्वल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बना दीजिए, या जैसे मैंने कहा है देखिए 4, देखिए बना दीजिए, ज़्यादा बना दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब अपने को कितने चाहिए 8, तो जो 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अपना काम यहाँ तक हो जाएगा। फिर भी अगला लिख लें 9। अब देखो डिनोमिनेटर में कितना है 8, तो सबको किससे डिवाइड करना, जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है। ये देखिए आपके पास इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए सारे पार्ट्स, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इससे किया फ्री हैंड से, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो सकता है, आपको इक्वल पार्ट करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये 0 1, अब मुझे किससे डिवाइड करेंगे, देखो डिनोमीटर कितना है, देखिए डिनोमीटर यहाँ कितना, देखिए आपके पास 8, यहाँ भी कितना है 8, यहाँ भी कितना है 8, यहाँ भी कितना 8, तो मैं किससे डिवाइड करूँगा 8 से। देखो 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है, बाकी है बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। 7/8, 8/8, 9/8। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, देखिए 1/8, ये मेरे पास देखिए 0 बना दीजिए, उसको ABCD या जो भी आप अल्फ़ाबेट्स देना चाहें, तो इसको जैसे मैंने A लिखा, तो देखिए मुझे 1/8 चाहिए, तो मेरे पास जो मेरा आंसर होगा A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/8 को। देखो नंबर लाइन पर A। अब देखिए ये 2/8, मुझे 2/8 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा B, तो मैं क्या कर दूंगा, B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए 2/8। अब देखिए 3/8, ये देखो कंसेक्यूटिव दे रखे हैं इसने, C इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 3/8। अब मुझे क्या चाहिए 7/8, ये देखिए 7/8, तो चाहे तो सबको कंटिन्यूस नंबर दीजिए, नहीं तो जो अपने को जरूरत है उसी को मार्क कर सकते हैं। तो D इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 7 8, ये अपने पास क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप इट विल बी क्लियर। थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट भी आप इजीली, ये थर्ड पार्ट है, आप कर सकते हैं। 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, और जो भी न्यूमरेटर है उतने बना दीजिए आप। और ये इक्वल डिस्टेंस पर है, आप चाहे तो स्केल से कर सकते हैं, या आप ज्योमेट्रिकल एपरेटस की सहायता से भी कर सकते हैं। क्लियर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इजीएस्ट क्वेश्चन, जैसा एग्जाम्पल क्या था, इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए मैं ए पार्ट की बात करता हूँ। ए पार्ट देखिए 20/3, तो देखिए 20 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, देखो 20 को 3 से, 3 6 जा 18, रिमाइंडर मेरे पास क्या हो गया 2, ठीक है। तब देखिए मैंने मिक्स फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद रहो तो, कोई दिक्कत याद नहीं हो तो भी चलेगा, कोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, ये देखिए, ठीक है। तब देखिए ये आपके पास है, ये क्या कहलाता, देखो आपके पास नहीं पता होती क्या कहलाता, कोशिएंट जो शेष होता है सब डिवाइड करने पर बचता है वो क्या कहलाता है रिमाइंडर, और जिससे अपन डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है डिवीजन। देखिए तो 20/3, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 6 कोशिएंट रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 2, और जिससे अपन ने डिवाइड किया है 2, 6/2/3। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 6 या 18 और 2 20, 20/3, ये देखिए आपका फर्स्ट पार्ट है। क्लियर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखिए 11/5, देखिए सेम एग्जाम्पल 11/5। तो अब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो जैसे मैंने बताया 5 की टेबल बोलिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 + 1/5। देखो देखिए फिर इसको मैंने सेपरेट किया, अगर मैथमेटिकली करना चाहें अपन तो 10/5 प्लस क्या हो गया 1/5, 10 को 5 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 2 + 1/5, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 and 1/5, ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, यू कैन डिवाइड एंड सोल्व आल्सो, ठीक है। ये भी एक मेथड है, जो भी मेथड आपको बेटर लगे, मैं सारे मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ वी मूव टू देखिए पार्ट सी, देखिए पार्ट सी 17/7, देखो सी 17/7, तो देखिए सी पार्ट, तो अगेन दोनों मेथड से सोल्व कर देता हूँ। 17 7 से डिवाइड करेंगे, देखो 7 2 जा 14, 3 रिमाइंडर, तो देखो दिस इज कॉल्ड एज अ रिमाइंडर, दिस इज कॉल्ड एज अ कोशिएंट, दिस इज कॉल्ड एज ए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। तो देखो 17/7, तो क्या होगा कोशिएंट 2,
रिमाइंडर 3 और डिविजन कितना हो गया 7। देखो 7 टू जा 14 और 3 17/7। डी पार्ट कंसिडर करें। देखो डी पार्ट है 28/5। देखो इसको मैं सेकंड मेथड से करता हूँ मैथमेटिकली बिना डिवाइड किए। देखो 5 की टेबल बोलिए तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो 5 5 जा कितना होता है 25। 25 प्लस 3, देखो मल्टीपल्स ऑफ 5 डिनोमीटर की फॉर्म में लिखेंगे। डिनोमीटर 5 है इसलिए 5 की फॉर्म में लिखा। फिर अपन क्या करेंगे सेपरेट करेंगे। 25/5 प्लस 3/5। देखो 25/5 कितना हो गया 5 प्लस 3/5। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं 5 and 3/5। दिस इज योर आंसर। आई होप इट विल बी क्लियर। तो C and D both part we have done. Now we move to next page. देखिए last in this question 6 part I have given, 4 I have solved. Now last E1 देखिए E part 19/6। I hope it will be clear now. We can do mathematically. 6 multiples of 6 is 18 plus 1, 6 3 जा 18 plus 1 that is 6, so that is 18/6 plus 1/6। तो 6 3 जा 18 that is 3 plus 1/6 that is 3 1/6। this is easiest method। और डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू लास्ट पार्ट। देखिए F पार्ट। देखिए F पार्ट 35/9। क्लियर 35 9 4 जा 36, तो 36 is greater than 35, तो therefore 9 3 जा 27, 27 plus 8/9। क्लियर तो that is 27/9 प्लस 8/9। देखिए इससे ज़्यादा था तो अपन ने 27 ले लिया। 27 को 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 प्लस 8/9। तो क्या होगा देखो 3 8/9। ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, और इसको डिवाइड करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखो 35 को आप 9 से करेंगे तो 9 3 जा 27 और 8। ये आपके पास क्या हो गया रिमाइंडर। ये आपके पास क्या हो गया कोशिएंट। ये आपके पास डिवीजन। ये आपका अल्टरनेटिव मेथड है। और आप ये भी कर सकते हैं। ये मेथड आपको इजीएस्ट लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस मेथड। आपको इस मेथड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैथमेटिकल है, थोड़ा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डेवलप्ड होगा आपके पास। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर। जो पहले किया था उसका रेसिप्रोकल देखिए इम्प्रॉपर। निम्नलिखित को विषम भिन्न या अनुचित, इसको अनुचित भी कहते हैं, विषम भिन्न के रूप में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में। देखिए इजीएस्ट है उसका अपोजिट। देखो मैं ए पार्ट कंसिडर करता हूँ। ए पार्ट 7 3/4। देखिए जैसे उसका रेसिप्रोकल डिवाइड किया था तो क्या होगा 7 into 4। देखो 7 into 4 plus 3। देखिए 7 into 4 plus 3/4, तो क्या होगा 7 4 जा कितना होगा 28, 28 plus 3/4। देखो तो 31/4। देखिए सीधा सा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो ये क्या कहलाता है इसका, आपको ध्यान हो तो डिविजर। ये क्या कहलाता है कोशेंट। तो इसमें क्या होगा देखो डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसका जो फॉर्मूला लिखे आप डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजन। ये मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने का मेथड है। ठीक है, याद नहीं हो तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो बी देखिए 5 6/, सीधा सा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना 5 into 7, फिर इसको क्या कर देना प्लस, इसमें जो भी रिजल्ट आता है उसमें। देखिए सर्कल पूरा बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, जो रिजल्टेंट आता है उसमें 6 प्लस कर देना। देखो तो ऐसा लिखेंगे मैथमेटिकली 5 into 7 plus 6/7। तो 7 5 या 35 और 6 कितना होगा 41/7। दिस इज योर आंसर। क्लियर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम पार्ट सी। देखिए पार्ट सी 2 5/6। आई होप इट विल बी क्लियर। 2 5/6, तो 2 into 6 plus 5/6। देखिए 6 2 जा 12, 12 और 5 17/6। देखिए डी पार्ट 10 यू कैन राइट डायरेक्टली। अब आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50 और 50 प्लस 3, तो क्या हो गया देखिए 53/5। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए सी पार्ट हो गया, डी पार्ट हो गया, ई पार्ट देखिए। नाउ वी मूव टू ई पार्ट। देखिए
ई पार्ट 9 3/7 देखिए डायरेक्ट 7 9 जा 63 और 3 66/7 7 को 9 से गुणा करेंगे 63 63 और 3 66 66/7 नाउ एफ देखिए 8 4/9 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 और 4 कितना हो गया 76/9 अगर जस्टिफिकेशन चाहें सही है राइट है और रॉन्ग है तो 8 × 9 + 4 8 × 9 + 4/9 ये अपन ने किया था देखो क्लियर। तो ये आपके देखिए एक्सरसाइज कंप्लीट है 7.2 सारे क्वेश्चंस मैंने सोल्व कर दिए हैं और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें और इसकी फ्रैक्शंस की हिस्ट्री देखें देखो बहुत ही अच्छा है। वर्ड फ्रैक्शन कहाँ से आया? फ्रैक्शन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्रैक्टस। फ्रैक्टस का मतलब क्या होता है ब्रोकन, उसको पार्ट करना तोड़ना, तो इसलिए ये वर्ड कहाँ से आया फ्रैक्शन में। और ये इजिप्ट जो मिस्र की सभ्यता थी इजिप्ट उसमें पहले से ना सबसे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वहाँ पर प्रचलित था और इनफैक्ट दे वर यूज टू कंपेयर द होल नंबर्स विद वन अनदर। होल नंबर को कंपेयर करने के काम में लिया जाता है। एक हिस्ट्री है, अच्छा लगे तो ठीक है नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। आई होप यू विल बी एंजॉय द लेसन और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए और लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका हर आपके कमेंट्स का या हर आपकी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन करने की ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग this video.